નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 7. This is part 7 of chapter 5, acids, bases and salts of standard 7 science. Today we are going to discuss one of the process, that is neutralization. So we are going to learn what is neutralization exactly. Okay, and in which we are going to perform an activity that is 5.5. Okay, so to start this, let me tell you, you should be on the page number 54 in your textbook. Now I am reading this and will make you understand together. Okay, neutralization. We have learned that acid turn blue litmus red and base turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. हमें पता है acid turns blue litmus to red and base turns red litmus to blue. But if we add acid and base together, acid और base को अगर इकट्ठा करते हैं, then what happens? And that is what we are going to learn today. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. हम एक और इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं और उसका नाम है phenolphthalein. Okay, now there is activity 5.5. Before starting this activity, I would like to say figure 5.5. Figure 5.4 is there, and what that figure? पहले इसलिए बता देता हूँ so that के बीच में मुझे ये ना बोलना पड़े. See, this is phenolphthalein. The color of phenolphthalein is pink. You can see here the color of phenolphthalein is pink, and in this test tube 1/4 of acid, it is filled with 1/4 part of acid, that is hydrochloric acid. इतना ये पिक्चर में है, अब हम डिस्कस करते हैं. So activity 5.5, that is what we are going to discuss. Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है. कितना? 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब हाइड्रोक्लोरिक, दैट टू बी डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नोट डाउन इट्स कलर. अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको कोई कलर नहीं होता है. सो नोट डाउन इट्स कलर मतलब देयर इज नो कलर. नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein सॉल्यूशन आल्सो. अब phenolphthalein जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर पिंक होता है. कौन सा होता है? पिंक होता है. एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड. अब हमें क्या करना है? हमारे पास देखो, वी हैव दिस इज HCl. इन दी अप टू दिस देयर इज HCl. HCl जिसका कोई कलर नहीं है. अब हमें क्या करना है? We will put 2 to 3 drops of phenolphthalein. क्या डालेंगे? phenolphthalein के 2 to 3 drops, and the color of phenolphthalein is what? Pink. Color of phenolphthalein is pink. अब हम क्या किया? We add 2 to 3 drops of phenolphthalein in this HCl. इतना हमने किया. HCl का कोई कलर नहीं था, और जैसे ही हम phenolphthalein पिंक कलर जो है वो इसमें डालेंगे तो भी ये है वो कलरलेस रहेगा. एक्चुअली जो phenolphthalein है उसका पिंक कलर है. अगर इसमें डाले तो ये थोड़ा सा पिंक होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होगा. ये जो HCl है वो कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा. अगर हम 3
ड्रॉप्स पिंक कलर फिनोल्फथालीन के डालेंगे, फिर भी इट दिस HCl विल रिमेन कलरलेस। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। Add 2 to 3 drops of the indicator to acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acid? No, there will not be any change in color of acid. It will remain colorless. Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. अब हमने क्या करना है, ड्रॉपर लेना है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। क्या लेना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। अब एक जो ड्रॉपर है उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालना है। किसमें? एसिड में। इसमें क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें डालना है इसमें, एसिड में। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, लेट मी टेल यू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज अ बेस। So add the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. Steer the tube gently. अब उसमें कुछ डाल के steer the tube and the solution very gently. You can see in the figure 5.4. Is there any change in color of solution? अब 2-3 ड्रॉप्स हमने NaOH के डाले। Is there any change of color? No, there will not be any change of color. Means the solution will remain colorless. Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. अब हमने क्या करना है? Continue adding the sodium hydroxide drops, ओके, एंड स्टीयर इट। 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं, फिर स्टीयर इट। 2-3 ड्रॉप डालने हैं, फिर स्टीयर इट। हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टीयरिंग टिल पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। अब हम वो उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे तो एक सिचुएशन आएगी उसमें जब हम 1 ड्रॉप ऑफ NaOH व्हेन वी विल पुट, तो क्या होगा? पिंक कलर जस्ट अपीयर एंड विल डिसअपियर। थोड़ा सा पिंक कलर आएगा और फिर से कलरलेस हो जाएगा। तब तक हमें क्या करना है? NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालना है। नाउ एड 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution will again become colorless. देखो, अब फिर NaOH डालेंगे तो फिनोल्फथालीन की वजह से दिस विल बिकम पिंक। NaOH और एक ड्रॉप डालेंगे। पहले एक ड्रॉप डाला तो पिंक कलर आके चला गया, फिर एक ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा? ये सॉल्यूशन थोड़ा सा पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वी विल एड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ HCl। अब हम फिर से क्या डालेंगे? HCl डालेंगे। HCl डालेंगे तो जो पिंक कलर आया था वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। इसलिए यहां पे लिखा है नाउ एड 1 more drop of dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये जो पिंक कलर आया था वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। Again add 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again become pink in color. अब देखो, फिर से HCl डाला तो कलरलेस हो गया, फिर हम NaOH डालेंगे, बाद में फिर से NaOH डालेंगे तो फिर से the solution will become pink color, ठीक है। फिर से solution will become pink color। तो फिर से हम अगर HCl डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा, फिर से हम NaOH बेस डालेंगे तो फिर से वो कलर आ जाएगा, दैट इज पिंक कलर।
evident that when solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. मतलब क्या हुआ कि अगर ये सॉल्यूशन में बेस ज्यादा हो गया, मतलब वो बेसिक हो गया, तो इसका पिंक कलर आएगा। फिर से हम उसमें एसिड डालेंगे HCl, तो फिर से वो कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले वेरी फर्स्ट टाइम जैसे ही हमने HCl में पिंक कलर डाला था फिनोल्फथालीन का, तो वो कलरलेस हो गया था। मतलब एसिड में HCl या तो एसिड में फिनोल्फथालीन का कलर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें बेस डालेंगे तो जैसे ही सॉल्यूशन वो बेसिक हो जाएगा तो फिनोल्फथालीन का कलर पिंक हो जाएगा। मतलब कि अब ये जो सॉल्यूशन हो गया वो बेसिक हो गया, फिर से हम थोड़ा सा HCl डालेंगे तो फिर से वो एसिडिक हो जाएगा, तो फिर से ये कलर लेस हो जाएगा। फिर से बेस डालेंगे, फिर से फिनोल्फथालीन का बेसिक कलर हो जाएगा, क्योंकि वो बेस आ जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन, तो पिंक कलर आ जाएगा। When and अब समझना है on the page number 55, when an acidic solution is mixed with base solution, both the solutions neutralize the effect of each other. एसिड के साथ बेस डालते हैं तो both the solution will neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in solution suitable amounts, both the acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed. हम suitable amount of acid and base, suitable amount जितनी चाहिए उतनी अगर मिक्स करते हैं तो क्या होगा, एसिड का एसिडिक जो स्वभाव है वो एंड नेचर ऑफ बेस दैट इज बेसिक नेचर, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। The resulting solution is neither acidic nor basic. तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, दोनों का मिश्रण जो है वो ना ही एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, neither acidic nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन हो गया तब एट द सेम टाइम टच द टेस्ट ट्यूब। What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced. अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ उसमें हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, उसमें हीट प्रोड्यूस होती ही है। और इवॉल्व इज ऑल्सो हीट प्रोड्यूस होना। द इवॉल्व्ड हीट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। अब वो जो दोनों मिक्स हुए एसिड एंड बेस, तो क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। वो हीट किसको मिलती है, ये सॉल्यूशन को। तो ये पूरी टेस्ट ट्यूब और ये जो मिक्सचर है वो हमें गर्म लगेगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। अब जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसको सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट कैसा हो सकता है, में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। Thus neutralization can be defined as follows. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. The reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process. Salt and water are produced in this water with the evolution of heat. तो ये जो एसिड और बेस मिक्स करते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, और वो रिएक्शन की वजह से सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। अब उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट एंड वाटर, मतलब वो ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा,
salt and water will be produced and with the evolution of heat, और दूसरा क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी. ओके, सो ये जो हमने किया था उसमें क्या था, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. ये जो है हम कैसे लिख सकते हैं, एज ए केमिकल रिएक्शन एसिड प्लस बेस produces salt and water, heat is evolved. अभी हमने जो किया वो क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे HCl लिखते हैं. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमने दोनों मिक्स किए तो सोल्ट प्रोड्यूस हुआ. क्या हुआ, NaCl दैट इज सोल्ट प्रोड्यूस हुआ एंड H2O वाटर प्रोड्यूस हुआ. So this was the reaction we did earlier in this test tube. This is the chemical reaction. We can write in such way. Okay. So now Buzo is also there. Buzo added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? अब देखो, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, लाइम वाटर क्या है, बेस है, तो हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं. बेस और एसिड जब हम मिक्स करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती ही है. ठीक है. सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस पार्ट एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.